Hello, students. Let's begin the story The Rat Trap. It has been written by Salma Lazarluf, who was born in 1858 and died in 1940. Salma Lazarluf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. So, as her stories have been translated into many languages, we can assume that the stories must have been very popular. They must have been liked by the people. That's why they were translated into so many languages. And why are they so popular? A universal theme runs through all of them. So, all of the stories of Salma Lazarluf हैव आ यूनिवर्सल थीम. यूनिवर्सल थीम मीन्स स्टोरी जितनी भी सलमा लैज़रलफ ने लिखी है उनकी जो थीम है वो हर एक कंट्री के लोगों को रिलेट करती है. स्टोरी को पढ़ने के बाद लोगों को लगता है कि वो उनकी ही कहानी है, उनके आसपास के लोगों की ही कहानी है. दैट्स वाई दे आर लाइक्ड बाय द पीपल. अ बिलीफ that the essential goodness, essential means necessary goodness in a human being can be awakened through understanding and love. So in all the stories we find the theme that जो अच्छाई होती है इंसान की, भले ही वो लालच की वजह से, गुस्से की वजह से, चलन की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से छुप गई हो, उसको जगाया जा सकता है, उसको दोबारा से जगाया जा सकता है उस अच्छाई को. कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. इफ़ वी ट्रीट द पर्सन विद लव, इफ़ वी अंडरस्टैंड द पर्सन's पर्सपेक्टिव, द पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू, देन वी कैन चेंज हिज थिंकिंग. तो हर एक इंसान की अच्छाई को, अच्छा तो है इंसान अंदर से, बट हम उसकी अच्छाई को बाहर ला सकते हैं अंडरस्टैंडिंग और लव से. सो सलमा लैज़रलफ की स्टोरीज़ में ये थीम पाई जाती है. दिस स्टोरी इज़ सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. अमिड्स मीन्स के बीच, द माइंस ऑफ स्वीडन. स्वीडन की खदानों के बीच ये स्टोरी सेट है. वहाँ के उस इलाके के लोगों की ये कहानी है. एंड दिस इज़ रिच, दिस रीजन इज़ रिच इन आयरन ओर. और मीन्स अयस्क होता है किसी भी मेटल का, किसी भी मिनरल का जो अनप्योरीफाइड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं. आयरन जब नीचे से निकाला जाता है ज़मीन में से तो वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं. वी हैव टू प्योरीफाई इट. तो उस प्योरीफिकेशन से पहले का जो होता है उसको कच्चा लोहा बोलते हैं. तो वो इलाका कच्चे लोहे के लिए फेमस है जहाँ की ये स्टोरी है, which figure large in the history and legends of that country. So iron ore का बहुत बड़ा महत्व है स्वीडिश हिस्ट्री में भी और स्वीडिश लेजेंड्स में भी, स्टोरीज़ में भी. आयरन ओर के बगैर वहाँ की बहुत सारी बातें अधूरी हैं. तो उस इलाके की ये कहानी है स्वीडन की. द स्टोरी इज़ टोल्ड somewhat in the manner of a fairy tale. So the manner of the storytelling is like the writer is telling us the fairy tale. परियों की कहानी सुनाई जा रही है, जैसे इस तरीके से कहानी सुनाई जाती है. Let us start the story. Before we start, we have some words here, the meaning of which we have to find out while reading. Keep body and soul together, plods along the road. You will have to keep a watch on these phrases.
Idiom phrases are these. So you will have to find out the meanings while reading. I will tell you the meaning whenever these idiom phrases will be there in the lines. You will have to find out the meaning. Plods along the road, impenetrable prison, eased his way, things have gone downhill, hunger gleamed in his eyes, unwanted joy, nodded a haughty consent, and fallen into a line of thought. So these phrases are very important. You will have to find out the meaning according to the text, according to the situation where they have been used. Let's begin. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. So there was a man who sold rat traps of wire. You know what rat traps are? चूहे को पकड़ने के लिए यूज किए जाने वाले पिंजरे, वो उनको बेचता था. He made them himself at odd moments, at free time, whenever he had nothing to do. जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, उस समय में वो उनको बनाता था, खुद बनाता था और उन्हीं को बेचता था. From the material, he used the material which he got by begging in the stores और at the big farms. तो वो उस मटेरियल से उनको बनाता था जिस मटेरियल को वो भीख मांग करके हासिल करता था स्टोर्स से या बड़े बड़े फार्म से. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. It was not especially profitable. The business, which business? The business of selling rat trap. So the rat trap seller was not in profit. So he had to resort to. To resort to means to take help of both begging and petty thievery. Petty means small. Thievery means stealing. To keep body and soul together. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स आत्मा और शरीर को साथ रखना, मीन्स जीवित रहना. टू कीप वन सेल्फ अलाइव. तो बाय सेलिंग द रेड ट्रैप, बाय बेगिंग, ही कुड नॉट मैनेज हिज एक्सपेंसेस. ही कुड नॉट लिव विद ओनली दैट अर्निंग. सो ही हैड टू डू स्टीलिंग ऑल्सो. चोरी भी करनी पड़ती थी उसको. सो इट वॉज अ कंपल्सन फॉर हिम. It was not his desire to steal, it was his compulsion. मजबूरी में उसे चोरी करनी पड़ती थी. और it has been written here, why did he steal? He stole to keep his body and soul together, to keep himself alive. So this idiom phrase should be explained as to keep oneself alive. Even so, his clothes were in rags. Rags are those clothes which are completely torn, फटे हुए. फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे. His cheeks were sunken. His cheeks means गाल. Sunken means पिचके हुए. And hunger gleamed in his eyes. So I think we have already found two phrases here. Hunger gleamed. Gleamed means shone, चमकी, चमकती थी. In his eyes. One could easily distinguish, one could easily understand that that person was hungry, and it was clearly visible in his eyes. तो उसकी आंखों से ही पता लग जाता था that he was hungry. तो he did stealing, he begged as well, but he could not manage. He sold rat traps. So he did 3 tasks. 3 काम करता था वो. फिर भी भूखा था, फिर भी गाल पिचके हुए थे, फिर भी फटे हुए हाल था वो. तो इस तरह का एक आदमी है. एंड आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ we have come to know that this person is the main character of this story, and he is really poor. We can say he's a beggar, although he's a businessman too. He's selling rat trap, but he's a
thief also. No one can imagine how sad and monotonous means बेस्वाद, नीरस, life can appear to such a vagabond. Vagabond means the person who keeps plodding, who keeps wandering here and there. Avara, khana bados. So a person who didn't have any home, a person who had nothing to eat, a person who was wearing torn clothes, a person who had to steal, a person who could not be doing a profitable business, whom had no money, उस पर्सन के लिए लाइफ कितनी नीरस हो सकती है, वी कांट इमेजिन. हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते. किसी इंसान की सिचुएशन को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उससे मिलती जुलती सिचुएशन से गुजरे हों, बट हम ऐसा अंदाज़ा तो लगा सकते हैं लेकिन सेम उस कंडीशन को नहीं समझ सकते, तो हम उसकी नीरसता को नहीं समझ सकते. हु प्लॉड्स, द पर्सन हु प्लॉड्स मीन्स धूल उठाते हुए चलना. अलोंग द रोड, रोड से, रोड के किनारे. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, तो वो अपने ही विचारों में खोया रहता था, रोड के किनारे से धूल उठाता हुआ चलता रहता था. तो उसके लिए लाइफ कितनी नीरस हो सकती थी, वी कांट इमेजिन. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लाइन ऑफ थॉट मीन्स मैनी थॉट्स केम टुगेदर. इट वॉज अ सीरीज ऑफ थॉट्स. उसके दिमाग में एक के बाद बहुत सारे ख्याल आने स्टार्ट हो गए. ही यूजुअली केप्ट वॉकिंग अलोंग द रोड. उस दिन भी वो ऐसा ही कर रहा था और उसके दिमाग में ख्यालों पे ख्याल आते चले गए, एक श्रृंखला सी बन गई. एंड व्हाट वाज दैट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग. सो जो भी विचार उसके मन में आ रहे थे वो बड़े एंटरटेनिंग लग रहे थे उसे. He had naturally been thinking of his rat traps. वैसे तो वो अपने rat traps के बारे में ही सोच रहा था. When suddenly he was struck by the idea. उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आया. And that idea was that the whole world about him, the whole world with him, including him, everything around him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. So उसको पूरा का पूरा संसार एक बिग रैट ट्रैप दिखाई दिया, पूरा का पूरा संसार. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. You know what baits are? Baits are used to catch rats. किसी शिकार को फंसाने के लिए हम कोई लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, दैट इज़ बेट. चूहे को पकड़ने के लिए जो हम खाने पीने के टुकड़े लटका देते हैं रेड ट्रैप में, दैट इज़ बेट. कभी कभी शेर को पकड़ने के लिए हम एक बकरी को रख देते हैं, हम तो नहीं रखते, लोगों को सुना है ऐसा करते हुए, सो दैट इज़ बेट. कभी कभी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी हम उसको थोड़ा लालच देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बेट. सो द rat trap peddlers thought that the whole world was a rat trap and it had never existed for any other purpose than to set baits for people. संसार ने कभी और कुछ काम किया ही नहीं है. संसार ने हमेशा लोगों के लिए बेट्स रखे हैं, लोगों को फंसाया है, लोगों को लालच दे करके फंसाया है. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज. सो संसार हमें ये ऑफ़र करता है, रिचेज़ अमीरी, जॉयज़ आनंद, सभी टाइप का, किसी भी टाइप की खुशी, किसी भी टाइप का आनंद, सभी ये संसार हमें ऑफ़र करता है. एंड अकॉर्डिंग टू द पेडलर दीज ऑल थिंग्स आर बेट्स फॉर अस. क्योंकि हम इन्हें पाने की कोशिश करते हैं और हम फंसते हैं. शेल्टर भी इसी में है एंड फूड भी, हीट एंड क्लोथिंग भी. वाई इज़ हीट बीइंग रेफर्ड हियर? The people living in India can't understand how heat is favorable. समझ तो सकते हैं, सर्दियों में तो बड़े काम की चीज़ होती है. सर्दियों में अगर धूप ना निकले तो आपको पता है कैसा लगता है. स्वीडिश पीपल नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट. कितनी ठंड होती है वहाँ पर, तो वो तो आग जला के रखते हैं अपने घर में, अलाव लगा के रखते हैं.
उनको हीट की कीमत पता है। तो दैट इज़ कोजी, दैट इज़ वेरी वेरी लवली। तो ये सारी चीज़ें, क्लोथिंग, कपड़े, रिचेज़, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग, all these things are liked by people. They desire for them. They can do anything to get them. And if they can do anything, they can take risk, they can go on wrong track. कभी कभी वो लालच में पड़ करके उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं और क्राइम भी कर देते हैं, तो फंसते हैं। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोक। चीज़ मीन्स पनीर के टुकड़े, पोक मीन्स मीट का टुकड़ा। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, टेम्प्ट मीन्स टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। जब भी कोई उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, इन अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड होता है, जैसे चूहा अट्रैक्टेड होता है खाने की चीज़ की तरफ, चीज़ की तरफ, पोक की तरफ, जैसे ही कोई टेम्प्टेड होता है इन चीज़ों की तरफ टच करने के लिए इनको, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। द फिलोसफी presented here is real. In this world, all the people are aspiring to get something in their life. They all are full of desires. Some want to get rich, some want to get big cars, big bungalows. There are so many desires, and for fulfilling those desires, people can take any risk. Like rat takes a risk and gets ट्रैप्ड इनटू अ रेड ट्रैप। तो फिलोसॉफी तो बहुत बड़ी है। रेड ट्रैप ने जो बात सोची है वो है, सच में है। लोग फंसते हैं इस दुनिया के अंदर। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमें हमारे मन को ललायित करती हैं और फिर हम भूल जाते हैं। कैसे बचा जाए इन चीज़ों से? वैसे इस चैप्टर की बात नहीं है, यहाँ पर जो बात डिस्कस की गई है वो सच है। वही लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, जो सही रास्ते पर रहते हैं, हुज अपब्रिंगिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जिनको अच्छे संस्कार मिले हैं, जो अच्छे से जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है, जिनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, वो लोग नहीं फंसते हैं। वो वही करते हैं जो सही होता है। और ऐसा नहीं है उनको ये चीज़ें मिलती नहीं है, मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, बट सही रास्ते से, सही काम से, तो वो फंसते नहीं हैं फिर। लेकिन कितने % लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से सभी चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं? बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनको मिल जाए एंड देन दे गेट इन ट्रबल। तो फिलोसोफर बहुत बड़ा हो गया है ये रेड ट्रैप पेडलर। वैसे तो एक बहुत ही इलिटरेट सा आदमी है, लेकिन बहुत बड़ी बात सोच रहा है। जैसे चूहा फंसता है वैसे ही लोग भी फंसते हैं। और आई थिंक इफ़ आई कीप रीडिंग it will be a longer video, so I should stop here. Today we have read that rat trap peddler was a very poor guy. He had to do begging, he had to do stealing also, he had to beg, he had to sell rat traps, and he made them himself. After doing all these activities, he could not fulfill his all needs. Still he was hungry, still he was with wearing rags, and he kept thinking whenever he was on his way. One day he got the idea that the whole world is a rat trap, because all the things offered by this world are baits. So I think everything is clear now. If you have any doubt, you can comment. We will start from this point in the next lecture. Till then, my dear students, take care. Bye.